आज आप लोगों की प्रैक्टिकल की क्लास है। तो लेकिन इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाने से पहले ये एक थ्योरी का वो है टॉपिक, वो कवर करवा रही हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। सबसे पहले आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है क्या? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज lateral pressure exerted by the column of blood on the wall of arteries। मतलब प्रेशर है जो कि आर्टरीज की वॉल पे है, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है और उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, वो है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। और इससे डिफरेंट जो डिजीजेस हैं उसके बारे में पता चलता है कि जो है हम लोगों का हार्ट है वो सही से पंप कर रहा है या नहीं कर रहा। The pressure is exerted when the blood flows through the arteries. Generally, the term blood pressure refers to the arterial blood pressure. Arterial blood pressure is expressed in four different terms: systolic blood pressure, diastolic, pulse pressure, and mean arterial pressure. सबसे पहले systolic blood pressure. It is defined as maximum pressure exerted in arteries during systole of heart. Normal systole pressure is 120 mmHg or 110 to 140 millimeter of mercury. Diastolic blood pressure is defined as minimum pressure exerted in arteries during diastole of heart. Normal diastolic pressure is 80 mmHg, which is ranging from 60 to 80 mm of Hg. Pulse pressure क्या है? Pulse pressure is the difference between the systolic pressure and diastolic pressure. Normal the pulse pressure is 40 mmHg, मतलब 120 जो था हम लोगों का सिस्टोलिक, उसमें से डायस्टोलिक 80 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। और मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर is the average pressure existing in the arteries. It is not arithmetic mean of systolic and diastolic pressure. It is diastolic pressure pulse, one third of the pulse pressure. To determine the mean pressure, diastolic pressure is considered the systolic pressure. It is because diastolic period of cardiac cycle is longer, which is 0.53 second, than the systolic period, which is 0.27 second. Normal mean arterial pressure is 93 mmHg, which is 80 plus 13 is equal to 93. Formula to calculate the mean arterial blood pressure is mean arterial blood pressure is equal to diastolic pressure plus one third of the pulse pressure। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, ये आप लोग देखेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। Variations in blood pressure is altered in physiological and pathological conditions. Systolic pressure is subjected for variations easily and quickly, and its variations occur in a wide range. Diastolic pressure is not subjected for easy and quick variations, and its variations occur in narrow range. मतलब ब्लड प्रेशर है, इसमें काफी वेरिएशन हो सकती है, हम लोग वो अब लोग पढ़ेंगे कि किस किस कंडीशन में ये वेरी करता है। सबसे पहले आगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, एज आ गई। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज एज एज एडवांसेस। सिस्टोलिक प्रेशर इन डिफरेंट एजेस है। न्यू बॉर्न में 70 होगा, आफ्टर 1 मंथ 85 हो जाएगा, 6 मंथ के बाद 90 हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर 95 हो जाएगा, एंड एट प्यूबर्टी 120 millimeter Hg, at 50 years it would be 140, at 70 160, and at 80 it would be 180 mmHg। आगे आ गया डायस्टोलिक प्रेशर इन डिफरेंट एजेस। पहले था सिस्टोलिक, अब है डायस्टोलिक। न्यूबॉर्न में 40, आफ्टर 1 मंथ 45, आफ्टर 6 मंथ 50,
After 1 year, 55 mmHg. At puberty, 80. 50 years में होगा 85. At 70 years, 90. And at 80 years, 95 mmHg. इसके बाद आ गया सेक्स में. इन फीमेल्स अप टू पीरियड ऑफ मेनोपॉज arterial pressure is 5 mmHg less than in male of same age. After menopause, the pressure in female become equal to that in the male of same ages. Body build pressure is more in obese person than in lean persons. Diurnal variations इन अर्ली मॉर्निंग, मतलब ये साइकिल होता है डायर्नल, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट, इसका जो साइकिल होता है उसको डायर्नल बोलते हैं. इन अर्ली मॉर्निंग द प्रेशर इज स्लाइटली लो, इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड रीचेस द मैक्सिमम एट नून, इट बिकम लो इन द इवनिंग. After meal, arterial blood pressure is increased for few hours after meal due to increase in cardiac output. During sleep, usually the pressure is reduced up to 15 to 20 mmHg during sleep, deep sleep. However, it increases slightly during sleep associated with dreams. Emotional conditions है, during excitement or anxiety, the blood pressure is increased due to release of adrenaline. Regulation of arterial blood pressure. Arterial blood pressure varies even under physiological conditions. However, immediately it is brought back to the normal level because of the presence of well-organized regulatory mechanisms in body. Body has four such regulatory mechanisms to maintain the blood pressure within normal limits. Nervous mechanism, renal mechanism, hormonal mechanism, एंड लोकल मैकेनिज्म. नर्वस है, ये शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, मतलब ये फौरन से कंट्रोल कर लेता है. और जो रीनल है वो लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म है. ये है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. इसके फोर है कंट्रोल मैकेनिज्म. नंबर 1 नर्वस मैकेनिज्म, रीनल मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म एंड लोकल मैकेनिज्म. नर्वस कैसे कंट्रोल करता है? बाय वेजोमोटर सेंटर एंड इंपल्स फ्रॉम द पेरिफेरी. तो ये नर्वस मैकेनिज्म का कंट्रोल सिस्टम है कि इसमें वेजोमोटर सेंटर्स होते हैं और इम्पल्सिस जो है रिसीव करता है. सबको पता है ब्रेन इम्पल्स से ही वर्क करता है, तो ये उससे कंट्रोल करता है नर्वस मैकेनिज्म. और रीनल मैकेनिज्म में क्या होता है? बाय रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. हम सबको पता है कि जो रीनल मैकेनिज्म है, जैसे कि मैं आपको रीनल सिस्टम पढ़ा रही हूँ, उसमें यही है फ्लूइड्स और जो सॉल्ट्स हैं, वाटर है, इस सबको कंट्रोल करके जो है किडनी अपना रोल प्ले करता है बॉडी की रेगुलेशन में. तो इस तरह ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की रेगुलेशन करके एंड बाय रेनिन एंजियोटेंसिन में. आगे हार्मोनल मैकेनिज्म है बाय हार्मोन काजिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन. वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. और लोकल मैकेनिज्म है बाय लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन. इनकी डिटेल तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये किस तरह होता है. यानी कि अब ये है डिक्रीज ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम, उसकी एग्जांपल है कि ये नर्वस और रीनल मैकेनिज्म का बताया. शॉर्ट टर्म में नर्वस आ गया और लॉन्ग टर्म में रीनल आ गया. शॉर्ट टर्म में क्या होगा? सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, जो क्या करेगा? कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करेगा और पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और होम्योस्टेसिस रिस्टोर हो जाएगा. मतलब जो हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन हो जाएगा. सॉरी, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल मेंटेन हो जाएगा. और जो लॉन्ग टर्म है उसमें क्या होगा? किडनी प्रोड्यूस रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन. रेनिन जो क्या रेनिन एंजियोटेंसिन एक मैकेनिज्म है पूरा. रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा, which in turn cause the antidiuretic hormone to release and aldosterone to secreted, जिसकी वजह से क्या होगा? कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी
या फिर पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, या फिर थर्स्ट को स्टिमुलेट करेगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जो एरिथ्रोपोइटिन है वो इंक्रीज रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है ये भी ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और होम्योस्टेसिस रिस्टोर्ड हो जाती है। इसके बाद आ जाता है डिफरेंट हार्मोन्स which are involved in the regulation of arterial blood pressure. These hormones are the hormones which increase the arterial blood pressure are adrenaline, noradrenaline, thyroxine, aldosterone, vasopressin, angiotensin, and serotonin. Hormones involved in the regulation of arterial blood pressure are vasoactive intestinal polypeptide, bradykinin, prostaglandin, histamine, acetylcholine, atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, C-type natriuretic peptide. इसके बाद आगे अप्लाइड फिजियोलॉजी के इसके डिसऑर्डर्स क्या हैं ब्लड प्रेशर के। पैथोलॉजिक वेरिएशंस हैं ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। दो तरह के ये हैं, एक हाइपरटेंशन हो सकता है या हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपर का मीन होता है इंक्रीज होना और हाइपो का होता है डिक्रीज। एक मिनट क्लास, ये था द हार्मोन्स विच इंक्रीज द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। यहाँ पे आप लोग खुद से ऐड कर लें, दीज आर द हार्मोन्स विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। यहाँ पे मैं ये लाइन ऐड करना भूल गई हूँ, आप लोग खुद से ऐड कर लीजिएगा। ये इंक्रीज करते हैं और ये डिक्रीज करते हैं। ये वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और सी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये जो है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। इसके बाद पैथोलॉजिक वेरिएशंस ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ये क्या है, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। Hypertension, also known as high blood pressure, it is a long-term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. जैसे मैंने आपको बताया, hyper mean increase. Clinically, when the systolic pressure remains elevated above 150 mmHg and diastolic pressure remain elevated above 90 mmHg, it is considered as hypertension. Common factors that can lead to high blood pressure include diet high in salt, fat, or cholesterol, chronic conditions such as kidney, hormone problem, diabetes, and high cholesterol, family history, especially if your parents or other close relatives have high blood pressure. And hypotension is the low blood pressure. When the systolic pressure is less than 90 mm of Hg, it is considered as hypotension. Thank you. This was all about our lecture.